السلام علیکم میری کہانی سننے والے لسنرز اینڈ ریڈرز، آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پر امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں آباد ہوں گے، آپ لوگ خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اس وقت آپ ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں نمر احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت ناول۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں کچھ اور مانگنے آئی ہوں۔ اپنا کپ لے کر اس نے ٹیک لگائی، پھر گھونٹ بھرتے ہوئے بڑے ابا کو دیکھنے لگی۔ اور اس وقت آئی ہو جب تمہاری ماں گھر پر نہیں ہے، اس لیے اگر موضوع گفتگو ندرت کے رشتہ دار کی شادی میں جانا ہے تو بھی صاف انکار ہے۔ آپ نے نئے ایئرپورٹ کے قریب جو اصا ہوا پلاٹ لے رکھا تھا میرے نام سے، اس کے کاغذات آپ کے پاس ہیں؟ جتنی سنجیدگی سے اس نے پوچھا، وہ اتنا ہی چونکے، اینک اتاری، اخبار رکھا اور اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ پلاٹ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ تمہاری اور زلفی کے نام جو تھوڑا بہت جوڑا تھا، اس میں سے زلفی نے اپنا حصہ نوکری کے دوران ہی لے لیا تھا۔ کاروبار میں بھی لگایا اس نے، مگر کاروبار میں تو پیشانی کا لکھا چلتا ہے۔ اس کا پیسہ کم ہوا بڑھا نہیں۔ تمہارے حصے سے یہ پلاٹ میں نے ان وقتوں میں خریدا تھا اور اب وہ خاصا مہنگا ہو چکا ہے۔ اس کو بیچ کر میں تمہاری شادی کروں گا اور بہت دھوم دھام سے کروں گا، مگر فی الحال تو میری شادی کا کوئی سلسلہ نہیں چل رہا، مگر جلد چلے گا۔ کچھ تمہاری پڑھائی، کچھ اس کم عمری میں ٹوٹی منگنی کے باعث ہم زیادہ ہی پروٹیکٹیو ہو گئے تھے، ورنہ تمہاری شادی میں کر بھی چکا ہوتا۔ اب بھی رشتے دیکھ رہا ہوں، مگر زمر تم بے وجہ ایسے ذکر نہیں چھیڑا کرتی۔ تو سوالیہ ابرو اٹھائی۔ زمر چند لمحے بالکل خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی۔ خاموشی دنیا کا سب سے بڑا اقرار، سب سے بڑی سزا۔ ابا، سعدی کو اسکالرشپ نہیں ملا۔ وہ بالکل چپ ہو گئے، آنکھوں میں رنج و ملال ابھرا۔ انا للہ، مگر شاید کسی اور وجہ سے۔ اب وقت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنے جا سکتا ماں سوائے اس کے۔ وہ رکی، ایک وقفہ دیا، مگر ابا کی آنکھوں سے نگاہ نہیں ہٹائی کہ ہم اس کی فیس بھر دیں، مگر ہم اتنی مہنگی یونیورسٹی افورڈ نہیں۔ الفاظ لبوں میں ٹوٹ گئے۔ وہ ایک دم شوقڈ سے اس کو دیکھنے لگے۔ ایک منٹ، تم کہہ رہی ہو کہ… میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں، ہم وہ پلاٹ بیچ دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، شوق کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، وہ تمہارا حق ہے۔ تمہاری شادی، زیور، سب اس سے بنے گا، اور بقیہ رقم تمہارا بینک بیلنس ہوگی۔ وہ تمہارا فیوچر ہے، ساتھ ہی ہمارا فیوچر ہے۔ 5 سال کی پڑھائی، ہر سال کی لاکھوں روپے کی فیس۔ نہیں زمر، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کو شادی سے بالکل محبت نہیں ہے؟ مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو، یہ حربے مجھ پہ اثر نہیں کرتے۔ وہ تلخی سے اس کی بات کاٹ کر بولے، مجھے وہ بہت پیارا ہے، اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے، مگر مجھے حنین اور اسامہ بھی پیارے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مجھے تم پیاری ہو۔ میں ندرت کے گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ اٹھاتا ہوں۔ کل کو حنین بڑی ہوگی اور پھر تمہاری شادی جس وجہ سے ایک دفعہ ٹوٹی، وہ دوبارہ نہیں دہرا سکتا میں۔ میری فکر مت کریں۔ تمہارے کہنے سے میں فکر کرنا چھوڑ تو نہیں سکتا۔ میں باقی سب کو نظر انداز کر کے سارا پیسہ شادی پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ جب پڑھ کر آئے گا تو اتنی اچھی جاب ملے گی کہ چند سال میں سب بنا لے گا، پھر میں بھی تو کماتی ہوں۔ وہ بہت سکون سے کہہ رہی تھی، لعنت ہے مجھ پہ اگر میں اپنی بیٹی کو پیسہ کمانے کے لیے ضائع کر دوں، اور اگر پوتا ضائع کر دیا تو… وہ لمحے بھر کو چپ ہوئے، مگر دلائل ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ پاکستان میں بھی تو پڑھ سکتا ہے۔ زمر بہت بیزار ہوئی۔ ابا، یہ بات مت کیجیے گا دوبارہ۔ کسی لوکل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لیڈز سے پڑھنے میں کتنا فرق ہے، ہم دونوں جانتے ہیں۔ وہ پیسہ ہماری سکوٹی ہے، شادی ہماری سکوٹی ہے۔ بڑے ابا نے جنجلاہٹ سے اسے دیکھا۔ اب کہ ان کی آنکھوں میں گہرا رنج تھا۔
जुमर, मत करो अपने साथ ऐसा। वो पैसा तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारी खुशियों का रास्ता खराब करके शादी का कैरियर नहीं बना सकता। दौलत किसी शादी की जमानत होती तो सबसे ज्यादा खुश बादशाहों की बेटियां होती। और पता है अब्बा, सबसे ज्यादा नाखुश शहजादियां ही रहती हैं। बड़े अब्बा ने थक कर कप उठाया। उनकी चाय ठंडी हो चुकी थी। इलायची, दालचीनी की महक सब जायल हो चुका था। मैं नहीं चाहता कल को तुम इस बात पे पछताओ। क्या आप कभी मुझ पे खर्च करके पछताए हैं? वो उदासी से मुस्कुराई। उन्होंने नफी में गर्दन को झुंबश दी। कभी भी नहीं, मगर मेरा दिल नहीं मानता, और शादी भी तो नहीं मानेगा। उसे कौन बताएगा? मैंने मैम रिप्शा से बात कर ली है। वो यही समझेगा कि वो स्कॉलरशिप पे जा रहा है, क्योंकि अगर उसे पता चला कि पैसे आप दे रहे हैं तो वो कभी नहीं लेगा। मैं नहीं दे रहा, तुम देना चाह रही हो, मगर मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो फिर से मज़ाहमत करने लगे थे। जुमर ने आखिरी घूंट पिया, कप मेज पे रखा, हाथ गोया झाड़कर खड़ी हुई। ऐसा है योर ऑनर, कि बात शुरू करने से पहले मैंने पूछा था कि आपके पास कागजात हैं या नहीं। तो जनाब, वो कागजात मेरे पास हैं, और मैं प्रॉपर्टी डीलर से पहले ही बात कर चुकी हूँ। इसलिए अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं आप पे मुकदमा कर सकती हूँ, और कम से कम मेरे हल्का अहबाब में तो कोई अच्छा वकील मेरे खिलाफ आपका केस लड़ेगा नहीं। और अगर कोई मिल भी गया आपको, तो कम से कम अगले 7 साल तो मैं आपको कोर्ट के चक्कर जरूर लगवाऊंगी। इसलिए फिलहाल आपके पास मेरी बात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत मलाल में घिरे हुए बड़े अब्बा होले से हंस दिए। मगर मेरा मलाल लौट आया। वो चाय के बर्तन उठाकर वापस जा रही थी। उन्होंने उसे पुकारा, उससे इतनी मोहब्बत ना किया करो, वरना अल्लाह बहुत आजमाइशें डाल देता है। जुमर गहरी सांस लेकर पलटी और उनको देखते हुए रसान से बोली, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया था, मोहब्बत भी इंसान का इख्तियार नहीं होता। ये मेरे बस में नहीं है अब्बा। वो आज़ुर्दगी से मुस्कुराकर कहती हुई वहां से चली गई। वो फिक्रमंद और परेशान बैठे रह गए। उनको आज एहसास हो रहा था कि उसकी शादी में गैर ज़रूरी देर करके उन्होंने गलती कर दी। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अस्पताल की मरमरी राहदारी में हील से भागते कदमों की आवाज़ पे सादी ने सर उठाया। जवाहरात अपने शौहर के आगे तेज तेज आ रही थी। अपने सारे मेकअप और तैयारी के बावजूद इसका सफ़ेद पड़ा परेशान चेहरा किसी से छुपा नहीं था। सादी के पास वो रुकी, मुतवश नजरों से बंद दरवाजे को देखा और फिर इसे। शेरू कैसा है? वो ठीक है। हाशिम कहाँ है? औरंगजेब करीब आए। सादी ने कमरे की तरफ इशारा किया। वो अंदर है। आपके छोटे बेटे को होश आ गया है। उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। औरंगजेब आगे बढ़ गए, मगर जवाहरात वहीं खड़ी मुस्तरिब सुलगती नजरों से देख रही थी। क्या हुआ था शेरू को? सादी ने एक नजर औरंगजेब पे डाली जो कमरे का दरवाजा खोल रहे थे। मेरे सवाल नजरअंदाज नहीं किए जाते। जो भी नाम है तुम्हारा। वो दबी दबी सी गुर्राई थी। मैं अपना अकेला घर तुम्हारे ऊपर छोड़कर गई थी। अगर मेरे बेटे की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो तो तुम भुगतोगे। मिसेस कारदार, आपके अकेले घर के 2.5 दर्जन मुलाजमीन इस बात के गवाह हैं कि आपके बेटे की तबीयत खराब थी, और मैं उसे सिर्फ अस्पताल लाने का कसूरवार हूँ। वो शाम में उसे मिलने वाले लड़के से ज्यादा संजीदा और समझदार लग रहा था, मगर जवाहरात के तने तासुरात हनूस वैसे ही थे। किस किस्म की चीज से फूड पॉइजनिंग हुई उसे? वो मुश्तबा गुस्से भरी नजरों से उसे देखते फिर से गुर्राई। उसने दोपहर को वही खाया जो हम सब ने खाया था। उसे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। जवाहरात की आंखें तहय्युर से फैली। क्या मतलब? तुमने अभी कहा? मैं नहीं चाहता था कि कारदार साहब को ये बात इससे पहली दफा मिलने से पहले पता चले। जेब से एक पैकेट निकाल कर उसके सामने किया। ये ड्रग्स मुझे उसके पास से मिली थी, और खाली सिगरेट भी। आपके बेटे ने मंशियात की ओवरडोज ले ली थी, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। जवाहरात की हालत यूं हो गई जैसे सांप ने डंक मार दिया हो।
सफ़ेद चेहरे और फटी फटी निगाहों से उसने सादी के चेहरे से हाथ में पकड़े पैकेट तक का सफ़र किया। तुम तुम ये कह रहे हो कि मेरा बेटा एडिक्ट है? सिर्फ मैं नहीं, डॉक्टर ने भी यही बताया है। यकीनन वो कुछ अरसे से ड्रग्स ले रहा था। जवाहरात ने बोलने की कोशिश की, मगर सारे अल्फाज हलक में कांटे बनकर अटक गए। उसका अंदर बाखिर जख्मी हो गया। आंखों में नमी उतरी, मगर वो बेचैनी से नफी में सर हिला रही थी। मेरा बेटा, वो 24 घंटे मेरे सामने रहता है। मुझे कभी क्यों नहीं लगा कि वो ड्रग्स लेता है? आजकल के लड़कों को पता होता है कि उन्हें कितनी मिकदार लेनी है, और बहुत महारत से वो ये फन सीख जाते हैं कि उन्हें लोगों के दरमियान होते हुए भी खुद को नॉर्मल कैसे जाहिर करना है। और फिर साथ बैठे शख्स को भी इल्म नहीं हो सकता कि ये लड़का मंशियात के ज़ेरे असर बैठा है। ये भी डॉक्टर ने कहा है। जवाहरात ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया। तने तासुरात ढीले पड़ गए थे, कंधे भी ढलक चुके थे। मगर वो जिंदा है मिसेस कारदार, और जिंदगी से अहम कोई नेमत नहीं होती। उसको मोहब्बत से समझाइएगा, वो पलट आएगा। आपने सुना तो होगा कि अमर विंकंत ओमनिया, मोहब्बत फातेह आलम। मुझे घर जाना है, चलता हूँ। वो कहकर मुड़ने लगा तो जवाहरात तेजी से उसकी तरफ घूमी। क्या तुम उससे मिलोगी नहीं? उसकी फैमिली उसके पास है, और मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। वो जरा सा मुस्कुराकर कहता पलट गया। जवाहरात एक टिक से दूर जाती देखती रही। जब वो नजरों से गायब हो गया तो वो तेजी से प्राइवेट रूम के दरवाजे तक आई। शाम का आसमान हल्का सुरमई था। सूरज ने बादलों के नारंगी किनारों को दहका रखा था, और लाइब्रेरी की खिड़की इस मंजर को वाजिया दिखा रही थी। अंदर एक कोने में लंबी मेज बिछी थी। एक सिरे पे 3 लड़कियां बैठी किताबों में मगन थी। दूसरे सिरे पे 2 मुतसल कुर्सियों पे वो दोनों बैठे थे। जुमर सर झुकाए गर्दन टीठी कि एक कागज पे कुछ लिख रही थी, और फारिस करीब बैठा बोर सा होकर इधर उधर देख रहा था। चलिए, ये टॉपिक तो खत्म हुआ। सब क्लियर था ना? आखिरी लफ्ज लिखकर सफा उसके सामने करते इधर समर ने सर उठाया, उधर फारिस ने फौरन संजीदा और सीधे होते बहुत तवज्जो से इस कागज को पढ़ा। जी बिल्कुल। ओके, अब आगे चलते हैं। वो नोट्स के सफ़े पलटकर अगले मौजू पे आई, फिर कलम वाले हाथ को आदतन हिलाती रवानी से समझाने लगी। फारिस नोट्स को देखता जरा जरा देर बाद सर इस बात में हिला देता। बराह रास्त उसके चेहरे पे सिर्फ 2 एक बार निगाह डाल सका, फिर सर झुका लिया। जुमर का फोन बजा तो वो रुकी, नंबर देखा और मोबाइल कान से लगाया। जी सर, मैंने ही वो शीट आपको भिजवाई थी। वो रुककर सुनने लगी। जी बिल्कुल, मैंने तमाम स्टूडेंट्स की हाजिरी दर्ज की है, सिवाय हबीबा वकार के। मैंने दानिस्ता तौर पर इसका खाना खाली छोड़ा है। वो घुंघरियाली लट को उंगली पे रोल करती कह रही थी। फारस ने तिरछी निगाह उठाकर उसे देखा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। सर, साफ बात है, इम्तहान में बैठने के लिए 60% हाजिरी ज़रूरी है, और इस बच्चे की हाजिरी 40% है। मगर चूंकि वो डॉक्टर ताहिर अकरम की भांजी है, इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल करके इस 40% को 60 बनाने का कहा है। सो मैंने ये खाली खाना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा कलम तो उसको 60 नहीं करेगा। आगे आपकी मर्जी, आप इसको 60 करें या 90, मैं बरीउल ज़िम्मा हूँ। सादगी से सारी बात कहकर वो उनकी सुनने लगी, फिर अलविदाई कलमात कहकर फोन रखा और किताब की तरफ मतवज्जो हुई। खैरियत मैम? जुमर ने झुके चेहरे के साथ जरा मुस्कुराकर सर झटका। हूँ, ये सब तो चलता रहता है। कोई भी नौकरी फूलों की सेज नहीं होती। वो किताब दोबारा खोलने लगी। फारिस ने अब के जरा गौर से उसके चेहरे को देखा। एक बात पूछूं? जुमर ने सवालिया नजरें उठाई तो वो कंधे जरा उचकाकर थोड़ी सी शेव उंगली और अंगूठे में आदतन जरा जरा नोचता बोला। यूं ही ख्याल आ गया, उस दिन जो आपने किया, शादी के घर जानकर चाबियां भूलना। जुमर के लिए ये जुमला गैर मुतवक्को था। वो लम्हे भर को बिल्कुल धक से रह गई, फिर चेहरे पे सुर्खी सिमट आई। सर झटक कर उसने कुछ कहना चाहा, फिर खुद ही रुक गई। चंद सानिये खामोशी में गुजर गए। अगर वो जान चुका था
तो ये ज़ुमर की आदत नहीं थी कि वो इनकार करती। मुझे नहीं पता आपको शादी कितना अज़ीज़ है, मगर हमारे लिए वो ख़ानदान का पहला बच्चा था और बच्चे बराबर प्यारे होते हैं, मगर जो तवज्जो पहले बच्चे को मिलती है, वो दूसरों के आने तक हम उस मिक़दार में देने से कासिर रह जाते हैं। उसामा छोटा है, मगर हुनैन, वो मेरे हर वक़्त सिर्फ़ हमारा शादी करते रहने से मुझसे काफ़ी शाय रहने लगी है। अरसा पहले मैं वाक़ई कुछ भूल गई थी, 1-2 दफ़ा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो हर दफ़ा खिड़की में मेरा इंतज़ार करने लगी है। वो बहुत ज़हीन है और दुनिया ज़हीन लोगों को तन्हा कर देती है। उसे हमेशा मुझसे उम्मीद होती है कि मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ूँगी। तो मैं खुद उसे हर दफ़ा ये उम्मीद नए सिरे से थमा आती हूँ। कदरे तवक्कुफ़ से वो संजीदगी से बोली, हो सकता है आपको ये गलत लगे, मगर मेरे नज़दीक किसी अज़ीज़ शख्स को अपने करीब रखने के लिए कोई बहाना करने में कोई बुराई नहीं। फ़ारस ने बेइख्तियार उन ताज़ा फ़ोटोकॉपी शुदा नोट्स को देखा और फिर ज़ुमर को। बिल्कुल, मेरे नज़दीक भी नहीं। वो इसी संजीदगी से अधूरा छोड़ा मौज़ू वापस खोलने लगी। कदरे तक तवक्कुफ़ के बाद फ़ारिस ज़रा-सा खंकारा। बताने का शुक्रिया, हुनैन को नहीं बताऊँगा, सीरियसली। ज़ुमर ने सिर्फ़ एक कड़ी निगाह उठाकर उसे देखा। मुझे इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं, क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एतबार तोड़कर आप कभी भी बच नहीं सकते। फिर नोट्स उसके सामने रखे और सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा जहाँ से तोड़ा था। फ़ारिस अपने चेहरे पे ज़माने भर की बोरियत सजाए खामोशी से सुनता रहा। मिसेज़ रिमशा के ऑफ़िस में एक दफ़ा फिर चाय के 2 कप मेज़ के मुख्तलिफ किनारों पे रखे थे। इस दफ़ा सादी की तरफ वाला कप आधा खाली था और मिसेज़ रिमशा का अनछुआ। वो सारी बात सादी को बताकर अब बिल्कुल खामोशी से उसका रद्द-ए-अमल देख रही थी। वो अभी समझने की कोशिश कर रहा था। आप ये कह रही हैं मैम कि आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स एक प्राइवेट स्पॉन्सर को भिजवाए हैं और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करने की हामी भर ली है और वो हर साल मेरी फ़ीस जमा करवाते रहेंगे। वो वाक़ई बेचैन था। फ़ीस जमा अखराजात, जितनी रकम हम दे रहे थे, वही रकम वो देंगे। हाँ, थैंक यू। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। वो खुश था और खुशी इतनी थी कि इसमें ठीक से कोई तासुर भी नहीं दे पा रहा था। मगर वो है कौन? मैडम ने खामोशी से सामने रखे डिकोर बास्केट में से एक क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे उंगलियों में घुमाते हुए नजरें सादी के चेहरे से हटाए बिना बोली, है कोई जिसका दिल बहुत अमीर है और आप पे खर्च करने को पैसा भी बहुत है। फिर जरा संभल कर गोया हुई, एक चैरिटी बिजनेसमैन है, बहुत से स्टूडेंट्स को प्राइवेट तौर पर स्पॉन्सर करते हैं। आपके ख्वाहिश उनको अच्छे लगे और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने तरजीहात में अपने खानदान को पहले नंबर पे रखा। जी, मगर क्या मैं उनके बारे में कुछ जान सकता हूँ? मतलब अगर मैं उनसे मिलना चाहूँ तो? क्रिस्टल बाल घुमाते उनके हाथ रुके। वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे होकर बैठी। बिल्कुल भी नहीं सादी, मेरे कुछ असूल हैं। मैं इस स्पॉन्सर की कोई तफ़सील आपको फ़राहम नहीं कर सकती। अगर मैं इसरार करूँ तो भी नहीं, मैं सिर्फ़ उनका शुक्रिया। कुछ सवालों के जवाब जानना ज़रूरी नहीं होता। मैं आपका शुक्रिया पहुँचा दूँगी उन तक। अच्छा, वो उदास हुआ। आप मेरी ज़मर फूफा को जानती हैं ना? आपने उनको बताया ये सब? ज़रा पुरजोश होकर वो आगे हुआ। मैडम ने जवाब देने से पहले बहुत देर तक उसका तमतमाता चेहरा देखा। क्या आप चाहते हो कि मैं उनको अभी खबर कर दूँ? नहीं, नहीं, प्लीज़ आप मत बताइएगा। मैं खुद उनको सरप्राइज़ दूँगा। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। जल्दी-जल्दी इजाज़त माँगता, शुक्रिया अदा करता, दोबारा आने का कहता वो दरवाज़े की तरफ लपका। सादी, आपकी फूफू आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। उनके लिए कभी कोई कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे मत हटना। वो जाते-जाते मुड़ा। जी बिल्कुल। अच्छा, आप मत बताइएगा, मैं खुद बताऊँगा। और वो बाहिर था। मैडम ने सर झटक कर गहरी साँस अंदर उतारी और सोचा मोहब्बत एक बहुत सादा और बहुत पेचीदा शय है। हनैन सादी के साथ आई थी
और जितनी देर वो मुसलसल जोश से बोलता, दादी और पुप्पो को अपनी स्कॉलरशिप की तफसील बताता रहा। हुनैन उस केक के 3 टुकड़े खा चुकी थी, जो सादी ने रास्ते से लिया था। यानी कि तुम्हारी सारी पढ़ाई मुफ्त और अखराजात भी वाकई। ये तो कमाल हो गया। बड़ी अम्मी बहुत खुश थी। बार बार सादी के सर और कंधे पे हाथ फेर कर कहती, फिर फौरन इजाफा करती, नुदरत से उम्मीद नहीं थी कि बच्चों को पढ़ा पाएगी। असल में तुम्हारा बाप बहुत लायक था। तुम और हन्ना उसी पे गए हो। और सादी और हन्ना के लिए ये बातें भी असर थीं। बड़ी अम्मी के पास एक पूरी फहरिस्त थी कि फलां सदी में फलां के घर नुदरत ने मुझे यूं और यूं कहा, और नुदरत के पास भी ऐसी ही एक चार्ज शीट हमा वक्त तैयार रहती थी। और इन दोनों की गैर मौजूदगी में सादी कहा करता था, हर शख्स को अपना काम करना चाहिए। अल्लाह ने मर्द को 2 कान इसलिए दिए कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे, और औरतों को 2 इसलिए दिए ताकि दोनों से सुनकर मुंह से निकाले। और जुमर खामोशी से मुस्कुराती टेक लगाकर बैठी उसे सुन रही थी, जो तब से बोले जा रहा था। मैम ने मुझे उनका नाम तक नहीं बताया। मेरा बहुत दिल था कि मैं उनसे एक दफ़ा मिलकर उनका शुक्रिया ही अदा कर सकूं। वो याद करके फिर से उदास हुआ। हुनैन ने इधर उधर देखा, कोई उसकी तरफ मुतवज्जो ना था। उसने आगे होकर चौथा टुकड़ा निकाला, पीछे हुई और पूरी दिल जमी से खाने लगी। जुमर, सादी लहजा भर को चौंका। आप तो मैडम को जानती हैं ना, आप उनसे पता करवा देना कि मुझे स्पॉन्सर किसने किया है। जुमर हनूस मुस्कुरा रही थी, मुतमिन और पुरसकून। सादी की बात पे चंद लम्हे के वक्फे से वो बोली, ठीक है, मैं पता करवा दूंगी। अगर उन्होंने ना बताया तो मेरे इतने जराए हैं कि मैं वो नाम ढूंढ लूंगी। लेकिन वो लहजा भर को रुकी। सादी, एहसान का बदला क्या एहसान के सिवा भी कुछ हो सकता है? अगर तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, मगर तुम्हें नहीं लगता कि अगर कोई तुम पे पैसा लगा रहा है और बदले में सिर्फ उसकी इतनी ख्वाहिश है कि वो बेशनाख्त रहे, तो तुम्हें इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। सादी के लब ओहो में सुकड़े। हुनैन ने अब 5वां टुकड़ा उठाया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ हाँ, जुम्मन ठीक कह रही है। उस आदमी के पास होगा फालतू का पैसा। ये ना हो कि तुम्हारे ऐसे कदम से नाराज होकर पैसे देने से इनकार कर दे। बड़ी अम्मी बहुत समझदारी से कहने लगी। जुमर की मुस्कुराहट हनूस बरकरार थी। सादी ने समझकर सर हिला दिया, फिर याद आने पे पूछा, सच, जब हम दाखिल हुए तो वो खोखर सा बाहर निकल रहे थे। ये वो प्रॉपर्टी डीलर है ना जिसके पास आपने मुझे भेजा था जब हम घर बदलने का सोच रहे थे। जुमर की मुस्कुराहट सिर्फ लम्हे भर को हल्की हुई, फिर वो दोबारा मुस्कुरा दी। बड़ी अम्मी ने भी चौंक कर उसे देखा। हाँ हाँ, उनकी जायदाद का केस भी डील कर रही थी। असल में उनकी बहू की अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती, तभी बेटा हिस्सा मांग रहा है। मेरा तो ख्याल है वो बहू काफी समझदार लड़की है और सारा कसूर सास का ही होगा। मगर किन अखियों से माँ को देखते हुए वो सांस लेने को रुकी कि बड़ी अम्मी काफी जोश में आगे होकर कहने लगी, क्यों, तुम्हें क्या पता वो सास के साथ क्या सलूक करती है जब। छोड़े ना, हमें क्या बड़ी अम्मी, आइए केक खाते हैं। सादी जल्दी जल्दी कहता मेज की तरफ रुख मोड़कर बैठा तो केक नफासत से कटा आधा बचा था, और दूसरी तरफ सोफे पे हनैन यूसुफ बिल्कुल साफ हाथ मुंह के साथ हथेली पे थोड़ी जमाए अलामा इकबाल की तरह खला में घूर रही थी। सादी ने उसे घूरा और जुमर ने उसे मुस्कुरा कर देखा। वो सादी को नजरअंदाज करके जुमर को देखकर शर्मीला सा मुस्कुराई। मेरा अंदाजा था कि आज तुम लोग आओगे, इसीलिए मैंने बिहारी कबाब भी मंगवा लिए थे। पहले वो खाते हैं फिर केक। जुमर कहते हुए उठ खड़ी हुई। हुनैन की आंखें चमक उठी। सादी बस सर झटक कर रह गया। वो इस नामालूम शख्स की वजह से इतना खुश था कि घर जाकर अम्मी को हुनैन का बताने का इरादा तर्क कर दिया। और चौखट में जरा ओट में खड़े बड़े अब्बा ने तासुफ और फिक्रमंदी से जुमर के चेहरे को देखा, जो बहुत तमानियत से मुस्कुराती हुई किचन की तरफ जा रही थी। वहां कुछ पछतावा, कोई मलाल नहीं था। मलाल तो उनके दिल में भी नहीं था, मगर जहन में परेशानी जरूर थी। सादी अब बड़ी अम्मी से पूछ रहा था
کہ وہ اس کے ماموں کے کزن کی شادی میں آئیں گے یا نہیں، اور بڑے ابا گہری سانس لیتے اندر چلے آئے۔ ابھی انہیں شادی کا سرپرائز پہلی دفعہ سن کر اس پہ پہلا تاثر دینا تھا۔ کاردار خاندان کا قصر موسم گرما میں بھی بہار کے پھولوں سے سجا تھا۔ ولیمے کی دعوت کا تھیم پھول تھے اور وہ جگہ جگہ بکھیرے گئے تھے۔ لون میں مستطیل میزوں کے گرد صوفے تھے اور مہمان کہیں بیٹھے کہیں چل پھر رہے تھے۔ ان سب میں مرکز نگاہ وہ جوڑا تھا جس کے اعزاز میں وہ سب جمع تھے۔ ہاشم کا سوٹ سیاہ تھا اور شیرین کا گاؤن موتی جیسا سفید، سر پہ باریک کامدار دوپٹہ کندھوں کے پیچھے گرتا تھا، اور وہ ہاشم کی کوہنی کو تھامے ہنستی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ دونوں آگے پیچھے مہمانوں میں گھوم رہے تھے۔ ان کو دیکھتی نگاہوں میں حسد، رقابت، خوشی، خلوص، غرض، ہر طرح کے لوگوں کا ہر طرح کا جذبہ موجود تھا۔ صرف ایک شخص کی نگاہ مختلف تھی۔ سعدی اور حنین کی میز پہ موجود وارث بہت خاموش اور تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود فارس سے ذرا بڑا، صاف رنگت اور گلاسز والا خوش شکل سا مرد تھا۔ اس کے انداز میں اس خاندان کے لیے قدرے ناپسندیدگی تھی، اور وہ شاید صرف فارس کے مدعو کرنے پہ آیا تھا۔ خالہ اور بچوں کے بغیر کیسی گزر رہی ہے ماموں؟ ساتھ بیٹھے سعدی نے مخاطب کیا تو وارث نے ہاشم سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ سعدی اپنے اکلوتے سوٹ میں جو اس پہ ذرا کھلا تھا بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ بس اب تو صرف 3 سال رہ گئے ہیں، وہ دھیما سا مسکرایا۔ آپ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں آئے؟ سامنے ہتھیلی پہ تھوڑی گرائے بور سی بیٹھی حنین نے ناراضی سے پوچھا۔ کیا اس کٹو بیگم کو کھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا سعدی؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ انگریزی فلموں کے سارے باعتماد اور ترنت جواب حنین کو یاد تھے۔ میں مصروف تھا، اور پھر جس پارٹی پہ تم لوگ اپنے پھپھو کو بلاتے ہو اس پہ میرا آنا نہیں بنتا، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا؟ حنین چپ ہو گئی، پھر بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب ہی وہ اپنی دلہن کے ہمراہ ان کی میز تک آیا۔ وہ تینوں اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس، باقی سب کہاں ہے؟ ہاشم نے شہرین سے تعارف کروا کر حیرت سے سعدی کو دیکھ کر پوچھا۔ سیم کو بخار تھا تو امی اس کے پاس رک گئی۔ بڑے ابا کی فیملی کو کہیں اور جانا تھا، اور فارس ماموں، کہتے ہوئے سعدی نے لون کے داخلی چیک پوائنٹ کو دیکھا۔ وہ دعوت کے شروع میں تھے مگر پھر وہ ایوننگ کلاس کے لیے چلے گئے۔ جبکہ فارس نے بس سرسری سا پوچھا تھا، تمہارے دادا کی فیملی نہیں آئے گی؟ سعدی نے بتایا نہیں۔ تو وہ بس 10 منٹ رکا اور پھر اٹھ گیا۔ وارث بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر سعدی اور حنین کی وجہ سے وہ پابند ہو کر رہ گیا تھا۔ اس دن کے لیے دوبارہ شکریہ۔ اس نے پھر سے سعدی کا کندھا تھپک کر کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور بات بدلنے کو ماموں کی طرف مڑا۔ میں اس دن جو سارا خالہ کے بارے میں بتا رہا تھا وہ ان کی وائف ہے۔ میں جانتا ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شیرین پلٹ کر کسی اور سے باتیں کرنے میں محو تھی۔ اور وارث، کیا کر رہے ہو آج کل؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے وارث نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ کچھ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ ہوں، ضرور بتاؤں گا۔ ہاشم مسکرا کر جانے کو مڑا، پھر حنا کو دیکھ کر رکا۔ میں نے اتنا شینکی کیمرہ ورک آج تک نہیں دیکھا۔ اس کی تعریف کر کے وہ پلٹ گیا تو حنین نے شانے جھٹکے۔ پتہ نہیں پہلی دفعہ میں میرا کوئی یقین کیوں نہیں کرتا۔ شاندار بندے ہیں یہ ہاشم بھائی۔ واپس بیٹھتے ہوئے سعدی نے بہت فخر سے کہا تو وارث نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ جی، یہ بہت اچھے وکیل ہیں، بہت اچھے دفاعی وکیل ہیں، وہ بھی کرمنلز کے، اور کرمنل کے دفاعی شخص کو میں کرمنل سے الگ نہیں سمجھتا۔ ماموں؟ سعدی بہت سنجیدگی سے اس کی طرف مڑا۔ ہو سکتا ہے آپ ان کو پسند نہ کرتے ہوں اور شاید ان کی عزت بھی نہ کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے ان کی کمپنی کرپشن میں بھی ملوث ہو، مگر اس سب کے باوجود ہم ان کو کرمنل نہیں کہہ سکتے۔ میں ان کو جانتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں۔ وارث چپ ہو گیا۔ اگر سعدی کو پتہ چل جائے کہ وہ ہاشم کو اتنا نہیں جانتا تو۔ میری این جی او مسکراتے ہوئے آئی اور سعدی کے کان کے قریب جھکی۔ مسز کاردار آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔
चौंका, फिर उन सब से माजरत करता उठ आया। बाहर नीली शाम में स्याही घुलने लगी थी, मगर अंदर रोशनियों का सूरज जोबन पे था। फूल ही फूल, रोशनी ही रोशनी। लाउंज में रुककर सादी ने गर्दन उठाई, सीढ़ियों से ऊपर हाशिम के कमरे के सामने रेलिंग पे कोहनी टिकाए, दूसरे हाथ में नेकलेस का मोती घुमाती। वो किसी मलका की शान से खड़ी थी। सुर्ख लंबा गाउन, सुर्ख लिपस्टिक के साथ, आंखों में गहरा काजल, और गहरा इस्तराब था। सादी कदम कदम चढ़ता ऊपर आया, बिल्कुल जवाहरात के मुकाबले। आपका छोटा बेटा कैसा है? सादी ने खंकार कर बात का आगाज किया। जवाहरात मुस्तरिब सी मुस्कुराने की सही की, मगर आंखों में नमी उभर आई। वो तैयार है, कमरे में है, भाई के लिए दावत में शामिल हो भी जाएगा, मगर खुश नहीं होगा। मुस्कुराते हुए सर झटकने की सही में जब्त से आंखें गुलाबी होती गईं। सादी ने पुतलियां सुकेड़ कर गौर से उसका चेहरा देखा। यह निकारदार साहब को इल्म हो गया। जवाहरात ने इस बात में गर्दन हिलाई। औरंगजेब ने उसे बहुत झिड़का है। वो अपसेट है। आप मुझसे क्या चाहती हैं मिसेस कारदार? वो नरमी से बोला। हर परेशानी में एक ही ख्याल होता है, हाशिम संभाल लेगा, मगर आज हाशिम का बड़ा दिन खराब नहीं कर सकती, वरना संभाल तो वो अब भी लेता।